जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम everyone. I hope you guys are doing well. So today's session is about keyword analysis. So basically we'll start off by looking into what keyword analysis is and what are its usages. हम keyword analysis कब करते हैं और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकते हैं. So firstly, if you guys remember that when we did viability analysis, वहाँ भी हम लोगों ने keywords ही निकाले थे and through keywords we identified that whether there are spaces in a particular product या नहीं. इसमें again repeating my same point again कि keywords are like door to the products. अगर दरवाजे ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है, एक अच्छी बात है. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज़ अ प्रोडक्ट जिसके जो पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं विच वी कैन यूज देम एंड ऑप्टिमाइज देम इन अ लिस्टिंग, वो फॉर एग्जांपल अगर 25 हैं एज कम्पेयर टू अनदर प्रोडक्ट जिसके पोटेंशियल कीवर्ड्स आर अराउंड 100 और 150, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जिसके 150 कीवर्ड्स हैं तो 150 डिफरेंट सर्च टर्म्स या 150 डिफरेंट तरीकों से जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं. और एज अपोज टू दिस जो 25 जिस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं वो बहुत 25 डिफरेंट तरीकों से हमारे प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं. So our main goal or our main priority after we have like finalized the product or after it has crossed the first stage or the second stage of validation, we try to find out more keywords. Okay, for example, in viability analysis or later on when we'll do master keyword analysis, when we'll be preparing master sheet, तो हम उसमें देख रहे होंगे कि जो एक एक कीवर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इन कंट्रीब्यूटिंग टू आवर projected revenue or our projected sales. के for example, let's assume later on we'll also discuss when we'll be doing master keyword analysis that how do we select uh, our main competitor. And once we have selected our main competitor and let's assume हमारे main जो competitor है उसकी जो monthly sales है, for example it is $5,000. So once we have that value and once we have all the potential keywords, then we, while using Excel and several formulas which we'll be discussing later on, we can easily determine कि उस हमारा जो एक पर्टिकुलर कीवर्ड है वो 5,000 का सेल्स की प्रोजेक्शन या रेवेन्यू प्रोजेक्शन रीच करने में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है. Then don't worry guys if you guys like it might be overwhelming at this stage, but later on we'll discuss it in great detail जब हम लोग master keyword कर रहे होंगे. Now coming back to the keyword analysis. Keyword analysis is basically just to get more keywords, and the second most important thing is to see the relevancy of each keyword on Amazon. अब आप लोगों को लाइक मैं बार बार वाइबिलिटी और कीवर्ड एनालिसिस का मुआवजना इसलिए कह रहा हूँ ताकि यू गाइस कैन अंडरस्टैंड द मेन डिफरेंस. कि वाइबिलिटी एनालिसिस हमने किया ही इसलिए था ताकि हम लोग प्रोडक्ट में स्पेस आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन स्पेस आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हमें लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स भी मिल गई. साथ अगर आपको याद हो कि हम एक रेलेवेंसी कॉलम भी ऐड करते हैं जिसमें हम लोग रेलेवेंसी एनालिसिस करते हैं टू सी कि वो जो हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड है उसकी रेलेवेंसी कितनी है ऑन द टॉप 10 कंपेरेटर्स या टॉप 10 एसेंस या टॉप 10 रेवेन्यू जनरेटिंग कंपेरेटर्स जो हमने सिलेक्ट किए होते हैं फ्रॉम हीलियम 10. लेकिन इन कीवर्ड एनालिसिस हम उन 10 पे उस कीवर्ड की रेलेवेंसी नहीं देख रहे होते. हम लोग जो पूरा पेज है आपका जिसपे 48 प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं हम उस पे उसकी रेलेवेंसी देखते हैं. So I'll quickly move on and conduct a keyword analysis by myself to make you guys understand what exactly it is and how do we interpret the data. I'll just share my screen. Yes, so I've started my screen sharing and let's again take the same product which we were discussing in previous analysis. We can take chef hat. So first what I'll do is I'll try to remove all the glitches. कभी कभी जो glitches हैं ये helium की extension में show होते हैं, कभी कभी नहीं होते, but to be on the safer side we can simply remove it. And again telling you guys because if you have seen the previous lectures then you would completely understand that
it's very important that we conduct all the analysis against the main keyword. कि शेफ हैट हमने पिछले एनालिसिस में देख लिया था कि शेफ हैट इज द मेन कीवर्ड। अगर ये शेफ हैट थोड़ा मुझे डाउट होता, अगर या मुझे भी डाउट है, तो मैं रेलेवेंसी एनालिसिस और वाइबिलिटी एनालिसिस के थ्रू इसको देख सकता हूँ कि व्हाट इज द मेन कीवर्ड। बट नाउ लेट्स not repeat all the things again, and I believe you guys have practiced that a lot and you guys know how to find the main keyword. So we'll quickly start to conduct this analysis. Just give me a second, I'm trying to. So I'll क्योंकि इसमें कोई ऐसे ग्लिचेस मौजूद नहीं थे। Yes, I'm really sorry for this internet disruption. So एक दफा हम लोग देख लेते हैं कि Amazon Choice जिसमें ये तो sponsored है, so we quickly ignore the sponsored ones. Amazon Choice अगर एक बड़ा सा लिखा आ रहा होता और इसके अंदर चारों प्रोडक्ट्स होते, then that's a glitch and we usually remove that. इसमें what we can do is कि ये this might create a problem in the Helium extension, so I'll try to remove it. इसमें I have stopped my screen sharing because screen sharing के साथ it was not allowing me to remove the glitch. See, yes, I have started my screen sharing again. So now what I'll do is कि अब मैं जल्दी से Helium extension run करूँगा, and if you guys remember कि one we did viability analysis में हम लोग revenue से sort करते हैं, and after sorting from revenue हम लोग 10 के 10 ASINs इकट्ठे उठा के उसका रिवर्स ASIN करते हैं। बट राइट नाउ मुझे पता है कि 10 जो मैंने रेवेन्यू के साथ रिवर्स ASIN किया था वो तो मेरे पास कीवर्ड्स वाइबिलिटी एनालिसिस में आ चुके हैं। नाउ सिंपली व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक अप द टॉप 10 कंपेरेटर्स ऑर्गेनिकली जो रैंक है उस वाइज, वो जो रेलिवेंट है। सो फर्स्ट लेट्स सी, यस दिस इज रेलिवेंट, एंड मेजर डिफरेंस इज कि अब मैं अलग अलग उठाऊंगा कि इसका मैंने रिवर्स ASIN कर दिया, इसके बाद I'll uncheck this and I'll do reverse ASIN again. This is for the third one. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. And that's eighth. That's 9. That's 10. So guys, when you'll be when most of you will be listening or looking into this recording later on, आप वो speed तेज कर सकते हैं। मैं तो इसलिए भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ just to ensure कि एक एक चीज मैं clearly खुद करके practically आप लोगों को बता दूँ। So yes, Amazon.com है, and only one thing, अभी मैंने filter क्या करना है, मैं सिर्फ word count का filter लगाऊंगा और बाकी ये search volume का, organic rank का, ये सब मैं Excel के अंदर लगाऊंगा। I'll simply change this to 1, apply करने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा, और यही प्रोसेस मैं सबके साथ बारी बारी रिपीट करके हर चीज को and once I download all the files, yes guys, so right now I have downloaded all the 10 individual files, and again इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ word count जो है वो मैंने filter change करके जो default 2 था उसको मैंने 1 करके apply करके 10 individual files मैंने download कर दिए। and again जो हमने कुछ इसलिए इसको सॉर्ट नहीं किया थ्रू रेवेन्यू वाइज, क्योंकि रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करके जो कीवर्ड्स आने थे वी डिड दैट इन वाइबिलिटी एनालिसिस। हमने वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए जो टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग कंपेरेटर्स यूज कर रहे हैं।
अब हम वो कीवर्ड्स देख रहे हैं जो ऑर्गेनिकली रैंक्ड टॉप 10 कंपेरेटर्स हैं, वो कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं. इट्स क्वाइट पॉसिबल देयर माइट बी एन ओवरलैप कि जो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग है वो टॉप 10 में भी मौजूद हो, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो मौजूद ना हो. तो हम ये रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए टॉप 10 अलग ले लेते हैं. इन कीवर्ड एनालिसिस एंड इन वाइबिलिटी एनालिसिस वी टेक द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग कंपेरेटर्स. इसमें नाउ व्हाट आई विल डू इज कि these are all the 10 files which you can see. अब इसमें मैं क्या करूँगा, let's say कि I can rename one of these files as, let's say, chef hat keyword analysis, and I'll open this file up. Enable editing करूँगा. So what I have to do is कि जो बाकी 10 फाइल्स हैं उन सबको मैंने मर्ज करना है आपस में. तो I'll scroll down. नीचे आने के बाद मैं वापस जाऊंगा and I'll open up the second file. जैसे ही सेकंड फाइल खुलेगी I'll copy paste it और यहाँ लाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा. I'll repeat this process for the rest of the 8 files. जो मैंने कॉपी कर लिया उसको I'll close it. वापस आके अगली फाइल. We do this to ensure कि कोई भी कीवर्ड जो है वो अगर हम इंडिविजुअल कर रहे हो तो वो हमसे मिस ना हो जाए. And you guys will like अभी थोड़ी देर में you guys will understand the importance of डूइंग दिस एफर्ट के एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये सवाल आपके जहन में जरूर आएगा कि हम 10 के 10 को एक साथ उठा लेते हैं. So I'll just at this point of time, जो मैं चीज कर रहा हूँ, it's more important to understand what I am doing, look into what I am doing instead of listen case. सारी जो मैं ये चीज कर रहा हूँ इसमें मैं बोल क्या रहा हूँ, इससे इंपॉर्टेंट वो है कि मैं कर क्या रहा हूँ. ये आप लोग जरा बहुत गौर से देखिए इसको. I think this is the 5th or 6th file. इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा ये भी है कि हम लोग मोस्टली इसको जब हम लेटर ऑन कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तब भी ये चीज़ हमारी बहुत इस्तेमाल होगी. Because we have, as a company, as an agency, we have developed some sort of protocols or some sort of SOPs for keyword optimization. So these are basically the ways through which you guys can find out the keywords. और जो हम फिल्टर्स लगाते हैं जैसे वायबिलिटी एनालिसिस में लगाया था हम लोगों ने 300 के सर्च वॉल्यूम का, रेलेवेंसी 3 or greater than 3. That's basically the criteria to understand the importance of each and every keyword. And later on, just as I mentioned earlier as well, जब हम मास्टर कीवर्ड फाइल प्रिपेयर करेंगे तो उसमें तो हम लोग बहुत डीप डाउन जाके एक एक कीवर्ड की कंट्रीब्यूशन को एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से हम लोग उसको लिस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे व्हेन वी like conduct sessions on listing है जब हम लोग listing करेंगे. So basically the purpose of telling you guys each and everything and to repeat all the things a lot of times in the same session is to make sure कि आपके ज़हन में वो बात बैठ जाए, because these are the protocols, these are the ways through which we deal with clients. This is the actual hands-on experience and we want you guys, to everyone who is listening, कि वो इसका सही से फायदा उठाए, because this is actually the practicality. एक एक चीज हम लोग जो टीम है वो इस तरह इसको ऑपरेट कर रही होती है. So yes, this is the last file. हाँ जी, तो अब हम सबको एक फाइल मिल गया है. अभी तक मैंने किया क्या है, मैंने सिंपल 10 अलग अलग फाइल्स डाउनलोड की हैं. फाइल डाउनलोड करने के बाद मैंने उनको मर्ज कर दिया. बट अब इट्स क्वाइट पॉसिबल कि देयर माइट बी, लेट्स सी कि अभी कीवर्ड्स हमारे पास कितने हैं. तकरीबन 37,000, 37,500 हमारे पास कीवर्ड्स मौजूद हैं इस टाइम. सबसे पहले तो हम लोग इसके डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे. You can unselect all
उसके बाद हमने जो फ्रेज में है सिर्फ वो वाले डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तकरीबन 17,500 डुप्लीकेट्स मौजूद थे जो उसने रिमूव कर दिया। नाउ वील मेक दिस शीट इन अ मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म। द इरेलीवेंट कॉलम्स जो हैं हम लोग वो निकाल देंगे। We need search volume. We do not need search volume trend right now. We need competing products. We need CPR. CPR is basically Cerebro Product Rank, जो हमें बताता है कि 8 दिनों के कितने giveaways we should give in order to rank this particular keyword. Sponsored ASINs, we do not need it right now. We'll be needing this when we'll be doing keyword analysis. So title density, before moving on, it's a very important feature which Helium 10 recently added into its extension or its in its dashboard. Title density basically हमें बताता ये है कि पहले जो एक प्रॉब्लम which most of the sellers were facing कि इंडिविजुअली जाके देखना पड़ता था कि कौन सा कीवर्ड जो है वो कौन से सेलर ने अपने टाइटल में इस्तेमाल किया या किसने नहीं किया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लेट्स से वी चूज दिस प्रोडक्ट एंड बेसिकली ये इसका टाइटल है। इसने शेफ हैट्स ट्यूब शार्प विद एडजस्टेबल साइज फॉर एडल्ट किड्स इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें इट्स क्वाइट, हम इसका देख लेते हैं। इसका है एप्रॉन डैडी शेफ हैट एडल्ट एडजस्टेबल किचन। अब लेट्स अज्यूम के आई थिंक एप्रॉन डैडी, ये मेरे ख्याल से इसका जो ब्रांड नेम है वो हो सकता है। शेफ हैट इज वन कीवर्ड। एडल्ट एडजस्टेबल किचन कुकिंग हैट फॉर मेन एंड वुमेन, हो सकता है कि एडजस्टेबल किचन या एडल्ट एडजस्टेबल कोई एक कीवर्ड हो या एडल्ट एडजस्टेबल किचन कुकिंग हैट मिला के एक कीवर्ड हो। So these are all the keywords which this particular seller has used in its title. But we need to identify those keywords which not all not a lot of the sellers are using in its title. अब title density हमें basically बता ये रहा है कि ये जो बेकर शेफ का कीवर्ड है ये 2 sellers इसको अपने टाइटल में इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बेकर शेफ जाके लिखेंगे अमेजोन पे तो हमारे पास 48 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आउट ऑफ दोज 48, these 2 products are using baker chef and its keyword. But moving back and to refresh your memory, हमने शेफ हैट के अगेंस्ट ये डेटा स्क्रैप किया। सो हमने शेफ हैट जब लिखा था तो शेफ हैट लिखने के बाद हमारे पास 48 या 48 प्रोडक्ट शो हुए थे। उन 48 प्रोडक्ट्स में से 2 ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं या 2 एसेंस हैं या 2 कंपेरेटर्स हैं जिन्होंने बेकर शेफ को अपने टाइटल में इंक्लूड किया। और क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड ही शेफ हैट एंड वी आल्सो रोट शेफ हैट देयर, एंड आउट ऑफ 48 23 हैव यूज्ड शेफ हैट इन देयर टाइटल। अब इसमें व्हाट वी डू इज कि हम आइडेंटिफाई वो गैप कीवर्ड्स थ्रू कीवर्ड एनालिसिस इस तरह भी कर सकते हैं कि वी कैन एनालाइज, वी कैन सी दोस कीवर्ड्स which less sellers have used in their title. So this means this is a space कि कम लोगों ने ये फलाना अब जैसे आप लोग देख लीजिए कि let's say बारबेक्यू हैट है। फॉर एग्जांपल बारबेक्यू हैट 2 sellers ने इस्तेमाल किया हुआ सिर्फ, और हम देखें तो इसका अच्छा खासा मतलब 539 नहीं, अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं है। बट इट्स अगेन वी कैन सेफली अज्यूम कि अगर 600 भी पर मंथ वॉल्यूम है तो 20 पीपल आर एटलीस्ट सर्चिंग दिस ऑन Amazon। और इन 20 में से लेट्स अज्यूम कि हमारी कन्वर्जन अगर हम उसमें अगर शो अप हो जाए, अगर हमारा टाइटल में है तो ऑब्वियसली विल शो ऑन टॉप ऑर्गेनिक स्पॉट्स, और उसमें अगर हम लोग इंडेक्स कर दें तो लेट्स अज्यूम 20 में से at least let's say 5 or 25% can land onto our listing, and from 5 let's assume कि हमारा जो conversion rate है वो भी 20% है। 20 ने देखा, 5 हमारे पास 5 ने हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक किया और लेट्स अज्यूम 1 ने परचेज कर लिया। सो these are sort of opportunities which we are trying to explore. तो टाइटल डेंसिटी का ये है कि we identify those keywords which less sellers have used a particular keyword in their Amazon listing. So moving on, Amazon recommended हमें नहीं चाहिए sponsored organic, we need it right now. We need basically this sponsored organic. तो ये वाला हम लोग रिमूव कर देंगे। अगेन गाइस यू कैन सी के स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनिक यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी है, तो ये वाला जो है ये हम लोग रिमूव कर देते हैं।
अब हमारे पास क्या है, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स। एक हम लोग डाल देते हैं वर्ड काउंट का, और एक हम लोग इस पे डाल देते हैं पेज रेलेवेंसी का। दिस इज नॉट द सेम रेलेवेंसी जो हम लोग काउंट इफ फॉर्मूला लगा रहे थे वायबिलिटी एनालिसिस में। दिस इज बेसिकली द पेज रेलेवेंसी। फर्स्टली व्हाट आई कैन डू इज कि अब आपको याद होगा जब हमने डेटा स्क्रैप किया था तो हमने एक्सेल में कोई फिल्टर नहीं लगाया था, सॉरी हीलियम के डैशबोर्ड में कोई फिल्टर नहीं लगाया था। सो वील प्लेस सम फिल्टर्स हियर। सर्च वॉल्यूम में सबसे पहले तो हम लोग लगा देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 300 लगा के देखते हैं कि जिसका वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनका एटलीस्ट सर्च वॉल्यूम 300 या 300 से ग्रेटर हो। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक रैंक है उस पे यूजुअली वी टेल एक्सेल टू शो अस दोज कीवर्ड्स जिनका वॉल्यूम 300 से ज्यादा है और जो इनका ऑर्गेनिक स्पॉट 20 या 20 से कम है, यानी टॉप 20 पोजीशंस में वो आ रहे हैं। तो इसको वी कैन डू 20। अभी भी we can see that we have like around 491 keywords। तो इसमें भाई तो अच्छी बात है कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स हैं हम अपना क्राइटेरिया थोड़ा सा टाइट करके मजीद गोल्डन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन गाइस कि ये बहुत ज्यादा 1 और 2 आ रहे हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल देयर माइट बी अ सॉर्ट ऑफ ग्लिच। सो व्हाट वी रिकमेंड आवर टीम इसके वो जो एनालिसिस कंडक्ट करती हैं जब कीवर्ड एनालिसिस, बिकॉज हीलियम जेएस पे वी कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई, तो हम इसको 2 दफा परफॉर्म कर लेते हैं टू इंश्योर दैट देयर इज नो ग्लिच। लेट्स अज्यूम हम इसको थोड़ा और टाइट कर देते हैं, नंबर फिल्टर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स से 700। अब 700 हमने किया है तो 77 कीवर्ड्स मौजूद है। वी कैन इसको हम लोग कर देते हैं 500 और इसको थोड़ा सा टाइट और कर देते हैं, लेट्स से लेस देन और इक्वल टू, हम कहते हैं हमें 15 पोजीशंस दिखा दो। सो वी हैव गॉट रीजनेबल कीवर्ड्स जो हमारे पास 144 है। लेकिन अभी जब हम लोग पेज रेलेवेंसी करेंगे तो पेज रेलेवेंसी से ये 144 से भी हम लोग काफी नीचे आ जाएंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पेज रेलेवेंसी? लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट कीवर्ड, आई विल कॉपी इट, पेस्ट इट ऑन Amazon। आई थिंक शेफ हैट पहले ही लिखा हुआ था। अब we need to understand one thing, I have repeated it in my a lot of times in my previous sessions as well, कि 48 ऑर्गेनिक स्पॉट्स होते हैं। अगेन ये जो स्पॉन्सर्ड 4 आ रहे हैं इनको हम लोग इन 48 में नहीं गिनते। इसके अलावा जो रिकमेंडेड आर्टिकल्स आ रहे होते हैं या ये चीज आ रही है, दैट्स आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द 48 थिंग। जितने भी ग्लिचेस हैं वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन 48। So what I'll do is कि I'll start counting it कि शेफ हैट के अगेंस्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट जो है मेरा वो कितने आ रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्पॉन्सर्ड है नहीं गिनेंगे, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sponsored, 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 3 4 5 6 7। सो रेलेवेंसी हमारी फुल आई है विच इज 48। तो हम यहाँ वी कैन लाइक हम 48 जो टोटल है यहाँ लिख लेते हैं, और हम लोग क्योंकि बिकॉज इट वाज द मेन कीवर्ड तो ऑब्वियसली रेलेवेंसी तो हमारी मैक्सिमम आनी ही थी। तो इट्स बेसिकली 48। इसी तरह हम लोग शेफ्स हैट को लिखेंगे, ब्लैक शेफ हैट को लिखेंगे, और ये तो चले लेट्स सी अ सॉर्ट ऑफ, देखें ये जैसे कीवर्ड आ गया कुक कूल। लेट्स सी हाउ रेलेवेंट इट इज टू शेफ हैट। दिस सीम्स सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट कीवर्ड, क्योंकि इस पे जब हमने लिखा है तो हमारे पास काफी ज्यादा शेफ हैट
नजर आ रही हैं हमें। वी कैन अगेन काउंट द रिलेवेंसी। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये जो शर्ट है, दिस शर्ट, दिस इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज हमारे प्रोडक्ट के साथ, ऑल्दो दिस वन इज स्पॉन्सर्ड, बट हमारे प्रोडक्ट के साथ दिस इज नॉट रेलिवेंट, दिस प्रोडक्ट इज नॉट रेलिवेंट टू अस, तो हम ऑब्वियसली 48 में से उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इसी तरह लेट्स से बेकर, बेकर इज अ वेरी ब्रॉड और जेनरिक कीवर्ड, तो हमने बेकर लिख लिया। लेट्स से कि बेकर के अगेंस्ट कितने हमारे पास, इसमें तो चले हमारे प्रोडक्ट्स ही 16 शो हो रहे हैं बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट, तो इसमें एक ही हमें शो हो रही है, ये एक और हमारे पास नहीं, ये स्पॉन्सर्ड है, दिस इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड, तो हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट 1/16 कर देंगे। सॉरी, दिस इज कमिंग इन सॉर्ट ऑफ डेट फॉर्म, इसको मैं नंबर में करके I'll convert it in percentage form. इसी तरह ये 48 था, तो that was basically 48/48, और इसको मैं परसेंटेज फॉर्म में कर दूंगा। वो तो मैं कह रहा था, आप सिंपल लिख लीजिए, बाद में डिवाइडेड बाय 48 करके लॉक करके आप ड्रैग कर दीजिएगा तो पेज रेलेवेंसी आ जाएगी। इसी तरह यू रिपीट इट फॉर ऑल द कीवर्ड्स। दिस इज, ये निक शेफ है, लेट्स सी हाउ रेलेवेंट इट इज। ये देखें, दिस इज सॉर्ट ऑफ इररेलेवेंट कीवर्ड, तो इसकी रेलेवेंसी कितनी होगी, 0 होगी। गाइस यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अब हम लोग पूरे उस कीवर्ड की रेलेवेंसी पूरे पेज पर हम लोग देखते हैं। वायबिलिटी एनालिसिस में तो हमने जो टॉप 10 कंपेटिटर्स थे उनके अगेंस्ट हम देख रहे थे, ये अब हम बहुत थोड़ा सा एक स्टेप अहेड गए हैं और डीप डाउन देख रहे हैं कि इसकी वाकई रेलेवेंसी कितनी है। इसी तरह हम लोग ये सब रिपीट करेंगे, मशरूम हैट, फन हैट, टर्कोइज शेफ हैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड जब हम पेज रेलेवेंसी देख रहे हो तो एटलीस्ट वी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव एन आइडिया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, किस तरह का दिखता है, उसकी यूटिलिटी क्या है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, वी सी कि हमारे जो हम पेज पे आके देख रहे होते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो रेलेवेंट हो, रेलेवेंट किस तरह हो, कि यूटिलिटीज शुड बी द सेम, और टू सम एक्सटेंट डिजाइन सेम हो, लेकिन अगेन यूटिलिटी गेट्स प्रायोरिटी ओवर डिजाइन व्हेन वी आर कंडक्टिंग कीवर्ड एनालिसिस। हम देखते हैं अच्छा कोई प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी यूटिलिटी सेम है, डिजाइन चेंज है, शेफ हैट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो हम लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं। Let's see what this keyword is. This seems to be a Spanish keyword to me. देखें ये कुछ एक, इसमें कोई एक शेफ हैट भी मुझे नजर नहीं आई। देखें अब हमने क्या किया, हमने सर्च वॉल्यूम भी 500 का फिल्टर लगाया हुआ है, और हमने हमने जो ऑर्गेनिक रैंक्स हैं उन पे भी टॉप 15 का फिल्टर लगाया हुआ है। देखा जाए तो वी शुड गेट गोल्डन कीवर्ड्स। जो लोग करते हैं वो रेलेवेंसी को इग्नोर कर देते हैं एंड देख लेते हैं यार ये कीवर्ड है और ये हमने रिवर्स एसन करके लिया है, दिस हैज गॉट ग्रेट वॉल्यूम, दिस हैज गॉट ग्रेट organic rank, this might be a relevant keyword, but no, we have to see पेज रेलेवेंसी कि अगर हमने किसी कीवर्ड को यूज करना है अपनी लिस्टिंग में, सो दैट मस्ट बी रेलेवेंट, दैट मस्ट नॉट बी इररेलेवेंट। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, दिस इज व्हाट कीवर्ड एनालिसिस इज, इसलिए हम लोग इसको पेज रेलेवेंसी से करते हैं। इसमें आई ऑल्सो शेयर यू गाइज वर्ड काउंट का फॉर्मूला, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके तो ये मेरे पास फॉर्मूला था, तो मैं इसको लिखता नहीं हूँ हर बार, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमारा इसमें आप लोग देख लीजिए कि ये A3 में आ रहा है। So what I can do is I can simply, क्योंकि ये पहला हमारा A3 है तो मैं इसको A3 में चेंज कर देता हूँ। नो डाउट इट्स शोइंग द राइट करेक्ट वर्ड काउंट, बट फिर भी मैं इसको करके
तो आई कैन सिंपली ड्रैग इट कि ये 4 का वर्ड काउंट है, तो ये मुझे 4 का ही दिखा रहा है। इसी तरह मैं पेज रेलेवेंसी निकालूंगा, और जो लेट्स से कि यहाँ तक जो हमारे आए हैं दैट इज 50 या 50% अबव पेज रेलेवेंसी है, तो आई कैन हाईलाइट इट एज ग्रीन। जिनकी रेलेवेंसी 30 to 50, आई कैन हाईलाइट देम एज फॉर एग्जांपल येलो, और जिनकी 0 से 20 है, काफ़ी तो आपको 0 भी मिलेंगे, 0 को आप लोग रेड कर दीजिए, और जो 0 से 20 है यू कैन डू इट ऑरेंज। इससे हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितने पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं, उनकी रेलेवेंसी कितनी है, और इससे हम लोगों को एक बेहतरीन अंदाज़ा हो जाएगा। तो एज आई मेंशन कि दिस सीपीआर हमें दिखाता है सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक। हमें पता होता है कि कितने गिवअवेज हमें देने पड़ेंगे अगेंस्ट ईच कीवर्ड to get into higher organic spots. But right now, if you are talking, अगर हम इस टाइम Q4 में मौजूद हैं 2021 में, और उसमें CPR डज नॉट मैटर, करता है मैटर, बट इतना भी वो एरा, वो वक्त गुजर चुका है कि जिसमें हम लोग गिव अवेज से रैंकिंग अपनी करते थे। ये हमें competing products सिखा रहा होता है that there are 2000 products which are, or 2000 ASINs which are competing against this single keyword. So इस पे भी once we get the relevant keywords by finding the page relevancy, हम लोग उनको दूसरी शीट में लेके जाके वहाँ competing products पे filter लगा सकते हैं लो टू हाई का, कि हमें वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है, जिनकी रेलेवेंसी भी अच्छी है, जिनका ऑर्गेनिक स्पॉट भी अच्छा है, जिनकी टाइटल डेंसिटी भी कम है, यानी कम लोगों ने उन्हें अपने टाइटल में इस्तेमाल किया हुआ है, और जिनका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी जिनकी कम है, यानी कम लोग उस कीवर्ड के अगेंस्ट compete कर रहे हैं। उससे we can identify the golden keywords from this list. Again I repeat, we need to see those keywords which have good search volume, जिनका competing products कम है, कि कम products are competing on that particular keyword, जिनकी title density कम है, which means less number of sellers are using that particular keyword in their title, and that's specifically only for the title thing. हम overall की listing की बात नहीं कर रहे, सिर्फ title के point of view से title density इस्तेमाल करते हैं। Organic rank जिनका अच्छा है और जिनकी relevancy ज़्यादा है, maximum है। Word count हम लोग filter लगाते हैं 1, जब हमें देखना हो कि जब हम लोग लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा डिटेल में करेंगे जाके, सॉरी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन डिटेल में करेंगे, तब हम लोग इसका सही तरीके से यूजेज करेंगे। So this is basically all from my side, guys. The main purpose was to let you or educate you guys, to train you guys how to practically perform keyword analysis, the usage of keyword analysis, how to identify the golden keywords, understanding these important columns, and most importantly understanding the dynamics of page relevancy. And at each step I try to compare keyword analysis with viability analysis, so you guys are not confused कि वहां भी keywords आ रहे थे, यहाँ भी keywords निकाल रहे हैं, फर्क क्या आ गया? फर्क ये आ गया कि यहाँ page relevancy आ रही है, यहाँ वो keywords हैं जो top 10 organic spots से उठाए हैं, revenue generating, highest revenue generating सिर्फ criteria हमारा नहीं था। So yes, this is all from my side, guys. If you guys have any questions, just feel free to ask.